Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Now pay attention. Children, we started chapter 9 yesterday. And in that chapter, we have discussed about the topic crop production and its. So, what all points you all studied yesterday? Do you have any idea? कुछ याद है आप लोग को? क्या क्या पढ़े थे? Let's have a recapitulation of the topic. Recapitulate करिए. रिकैप्चुलेशन आपका होना चाहिए आप ताकि आपको पता चले कि आपने पढ़ा है. Have you all studied? Yes, Studied ma'am. the lesson? Yes, ma'am. Yes, ma'am. What was the topic? Ma'am, What was the autotrophs, topic? heterotrophs, Yes, yes, very crop good. production, Autotroph, agriculture heterotroph. practice, Rabi crop, Kharif crop. Yes, agricultural practices, Rabi crop, Kharif crop, crop production, then sowing and harvesting season of Rabi and Kharif crop. These all were the topics yesterday. Then have you all noted it down? सब लोग इसको लिख लिए हो? All have Yes, written this. ma'am. आप लोगों को in class 8, I am telling you again and again, be very punctual and regular so that you can, you do not have any problem during your exam time. Exam time में problem avoid करने के लिए आपको self study, reading habit and noting the points regularly आना चाहिए. This should be there. Then only you will avoid your chaos at that time of examination. So, in recapitulation, you all know what are autotrophs. Autotrophs क्या है आपको पता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The plants which prepare their own food and in presence of sunlight, chlorophyll, they are known as autotrophs. Autotrophs. Then heterotrophs are animals which are dependent on plant and other animal for their food. They are known as heterotroph Heterotroph. because they are dependent on other organisms. Then crop production we have discussed. कोई किसको याद है तो बोलिए, इसको रिवाइज करिए. The cultivation of The one cultivation type of one plant type of on a large plants on a large scale scale called is known crop as production. crop production. Yes, and what is this agriculture? The practice of The cultivating practice land of for cultivating growing land crops for is known growing as crops is known as agriculture. Practice of cultivating land for growing crop is known as agriculture. Then in agricultural practices, we have studied about Rabi and Kharif crop, two types of crop, and Rabi and Kharif. Why these two categories are only mentioned over there? Is there only these two categories that are responsible for giving us food in all variety? Because these are the basic food. ये आपका basic food है, grains and pulses. ये आपका basic food है. उसके अलावा हम लोग vegetables grow करते हैं, fruits grow करते हैं, and the farmers are always in a position or they have this idea that in between intermediate of two Rabi and Kharif crop और vegetables क्या grow किया जा सकता है. तो आप देखते होंगे vegetables are seasonal. Vegetables 2-3 महीने में एक नया तरह के vegetables आपको available हो जाते हैं market में. So they are seasonal. Production of them is seasonal. Now we will come to this another topic. Sowing and harvesting सबको पता है ना? Sowing and harvesting. Yes, of ma'am. Rabi and Yes, ma'am. Sowing season और harvesting season बहुत important है. June to October is
your Kharif crop, and Rabi crop is November to November April. to April. April. और ये सीजन क्यों है? Because खरीफ क्रॉप रिक्वायर मच ऑफ द वाटर, मानसून पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो उस सीजन में ग्रो करता है इन मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, जो हमारा रेनी सीजन है, दैट इज अ रेनी सीजन. And November to April, it is not so, it requires water but not to that extent. उस एक्सटेंट तक नहीं रिक्वायर करता है जिस एक्सटेंट तक आपका खरीफ. Then today we will study about the various agricultural practices required for growing crops. Here, yesterday I discussed that there are various steps in this agricultural practice, and these are your preparation of soil, sowing of. Now please stop making noise. Here, first topic is preparation of soil in the agricultural practice. Then comes your sowing of seed, addition of manures and fertilizers, then irrigation, crop protection, harvesting and storage. These are the sequence of processes which are followed in case of this agriculture practice. So here, children, the first topic today we will take, that is preparation of soil. Soil का preparation कैसे होना चाहिए, and it is very very important. अगर आपका soil का quality, soil का texture और soil की जो nutrient value है, that is not up to the mark, then the production will be hampered. जो production आपको जितना चाहिए to meet the demand of the over increasing population, that will not be to the mark, sufficient to the mark. Clear? So here we are practicing the process of plowing. Plowing का process हम लोग करेंगे. तो plowing का process कैसे होता है? First of all, the farmers plow the field with their help of machine work भी होता है, or through the old method, that is through the help of the oxen. And the plow is attached with the this cart or handle, and then it is just rotated in the field. उससे क्या होता है? What happens? आपने कभी देखा है फार्मिंग? तो फार्मिंग में आप देखते होंगे कि लैंड को, बैरन लैंड को, जो फील्ड होता है, बड़ा बड़ा फील्ड जो होता है, उसमें आपको ट्रैक्टर्स या दिस प्लाउ इज अलाउड टू रोटेट इन द फील्ड. पूरे फील्ड में इसको रोटेट करना किया जाता है. उससे फायदा क्या होता है? व्हाट हैपेंस विद इट? द ड्यू टू रोटेशन, द टर्निंग ऑफ that bigger soil pieces is done, and the larger pieces which are present in that field, they are known as crumbs. उसको crumbs कहा जाता है. और इस plowing के क्रम में that cannot, it may happen कि वो break नहीं करे, और उस larger pieces को break करने के लिए एक अलग method follow होता है, and that is known as tilling. उसको टिलिंग कहा जाता है. How is this tilling done? Tilling आप अपने पिक्चर में देखो, tilling and labeling is there. Labeling and tilling of the plowing or tilling is the same process, but labeling is the different process. तो tilling और plowing में आपको जो soil होता है उसको आपको upside down करना होता है, turning it upside down. आप कभी harrow या खुरपी देखे हो जिससे आप स्मॉल स्केल गार्डनिंग कर सकते हो? छोटा सा गार्डन है, अगर पॉट है, उसमें आप फ्लावर लगाए हुए हो, तो आप मिट्टी को क्या करते हो? खोदते हो. तो दैट इज टिलिंग और प्लाउइंग. बट इफ इट इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लाउ, देन दैट इज नोन एज प्लाउइंग. उसको प्लाउइंग बोलते हैं. लेकिन उस प्लाउइंग में भी बड़ा बड़ा पीसेस रह जाता है, and those large pieces are known as crumbs. उस large pieces को crumbs कहा जाता है. तो how is that broken? That is broken with the help of leveler.
इस तरह का एक मशीन ये ऑक्शंस के मदद से भी चलता है, या ये वुडन प्लैंक होता है और उसके ऊपर ऑक्सन से सबको अटैच किया जाता है, या अभी तो हम लोग मॉडर्नाइज टेक्निक यूज करते हैं, तो वी यूज विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर के यूज से भी इस वुडन प्लैंक को उसमें अटैच किया जाता है एंड इट इज अलाउड टू रोटेट। जब ये रोटेट होता है फील्ड में तो लार्जर क्रम्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर देता है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्लाउइंग? प्लाउइंग का बेनिफिट क्या है ये हम लोग अभी देखेंगे। फर्स्ट, इट इज एज इट इज मेंशन इन योर बुक ऑल्सो, आप लोग एक बार बुक देखिए। प्लाउइंग हैज फॉलोइंग एडवांटेज, इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन, इसके कारण एयर सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, बिकॉज चिल्ड्रन the plants have to respire in the soil itself, soil के अंदर ही उसको respiration भी करना है। तो roots के पास अगर air properly नहीं आएगा तो क्या होगा? It will not be healthy for the plants to grow. Then roots penetrate deeper into the soil. अगर plants का root नीचे तक नहीं जाएगा तो water और minerals वो sufficiently absorb नहीं कर सकता। Then और होल्डिंग भी उसके कारण हो सकता है, फर्मली होल्ड करना भी प्लांट को जरूरी है, तो उसके लिए भी रूट्स को नीचे तक जाना चाहिए। प्लाउइंग एनहांसेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। व्हाट इज दिस वाटर रिटेनिंग? अगर आपका सॉइल के अंदर वाटर पेनिट्रेट नहीं कर रहा है और ये प्लाउइंग आप नहीं कर रहे, तो अगर प्लाउइंग करेंगे तो नीचे वाली मिट्टी ऊपर आएगी, ऊपर वाली मिट्टी नीचे जाएगी, तो उसको वाटर को एक रास्ता मिलेगा कि वो अंदर तक जाए। तो जब प्लाउ करते हैं तो उसके कारण पानी अंदर तक एब्जॉर्ब होता है और वो ज्यादा दिन तक उसको मॉइस्चर दे सकता है, प्लांट को मॉइस्चर दे सकता है। तो दिस इज व्हाट प्लाउइंग enhances the water retaining capacity, मतलब ज्यादा दिन तक वहां मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, तो बार बार हम लोग को इरिगेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Then plowing uproots the weeds growing in the field, it also aids in the growth of the microbes. Now children, अब ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जो वीड्स है, वीड मतलब अनवांटेड प्लांट, आप देखते होंगे कि अगर फील्ड को ऐसे छोड़ दोगे तो आप देखोगे उसमें ग्रासेस आ जाता है, कुछ दूसरे तरह का पौधे जो यूजफुल नहीं है, दे कैन ग्रो, पूरा स्कम की तरह फैल जाता है और पूरा वो फील्ड को कवर कर लेता है, जिसकी जरूरत नहीं। लेकिन वो क्या कर रहा है? दैट प्लांट विच इज अनवांटेड is growing and absorbing the nutrient from the soil. वो soil का nutrient absorb कर रहा है। आप जो भी manure या fertilizer अपने field में डाल रहे हो, they are taking all that. तो वो अगर ले रहा है तो क्या हो जा रहा है? What will happen? Then the nutrient which should go to the development of your main plant, that is just taken away by the unwanted. अनवांटेड प्लांट के द्वारा वो न्यूट्रिएंट ले लिया जा रहा है और आपको वो प्लांट जो आप ग्रो करवा रहे हो फील्ड में, जिसको ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, ज्यादा ग्रोथ की जरूरत है, और अगर उसका ग्रोथ अच्छा होगा वो आपका फील्ड भी ज्यादा देगा, वो आपको ज्यादा पैदा देगा, पैदावार ज्यादा अच्छा होगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रेन्स या वेजिटेबल्स और व्हाटएवर जो भी प्लांट आपका है वो आपका बेटर क्वालिटी का। Then, as I told you that the big pieces of the soil are known as crumbs, which is labeled and then broken down into smaller pieces. Children, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? No ma'am. Any problem till No, here? ma'am. Okay, चलिए. Next we will start with this one. मैम प्लैंक मतलब क्या होता है? वुडन प्लैंक मतलब? प्लैंक का मतलब होता है एक वुडन टुकड़ा ही समझो ना उसका,
उसको एक शेप दिया रहता है ताकि वो थोड़ा हेवी होता है, और हेवी होने के कारण वो सॉइल को ब्रेक करता है। और देखते होंगे कि फार्मर्स उसके ऊपर भी दे जस्ट put their legs on it so that the body weight is also applied. And what is the purpose? Purpose है कि जो larger pieces है उसको break कर, ठीक है। तो आप बैठ के उसको हैमर से तो नहीं ब्रेक करोगे, क्योंकि वो फील्ड क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इट इज वेरी बिग, और वो लार्ज स्केल में वो काम करना होता है। इसीलिए ये वुडन प्लैंक हेवी रहता है। प्लैंक उसको नाम दे दिया गया है, वो एक तरह से सपोज कर लो लॉग ऑफ वुड, अब वुडन लॉग ऑफ ये पीस ऑफ दैट वुड, और वुड को एक शेप दे दिया जाता है ताकि वो लेवल कर दे पूरे सॉइल के बिगर पीसेस को ब्रेक कर, ठीक है, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट वन इज सोइंग। अब आपका फील्ड जब रेडी हो गया तब आप क्या करिएगा, सीड्स उसमें डालिएगा ना, तब सीड्स डालिएगा, उसके बाद ही ना प्लांट ग्रो करेगा। तो सीड्स डालने का भी 3 मेथड्स आ गए। फर्स्ट इज योर ब्रॉडकास्टिंग, सेकेंड इज सीड ड्रिल, and third is transplantation. There are 3 methods of sowing of seed. First of all, broadcasting. Broadcasting किसको बोलते हैं? Broadcasting is just scattering the seeds in the soil. Soil में seed को scatter कर दीजिए, और that is not in equal distance. वो unequal, unevenly distributed हो जाएगा, और तब उसमें growth हो जाएगा, और प्लांट उस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं। बट सम प्लांट्स डू नॉट ग्रो लाइक दैट। उसके लिए प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए, एक सीड से दूसरे सीड की दूरी प्रॉपरली फिक्स्ड होनी चाहिए। उसके लिए मशीन वर्क होता है, एंड दैट इज नोन एज सीड ड्रिल। वो आपके ट्रैक्टर्स या जो भी मशीन होता है जिसके थ्रू वो कैरी होता है सीड ड्रिल, तो वो फिक्स किया रहता है, और उसमें पर्टिकुलर स्पेस रहता है। जैसे सपोज कर लो ये है आपका सीड ड्रिल, तो इसमें एक इस तरह का होल रहता है, एंड इट इज एट इक्वल डिस्टेंस, वो इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, और यहाँ होल रहेगा, यहाँ से आपको सीड ड्रॉप करना है इसमें, और दिस सीड इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हियर and it will penetrate deep inside the soil. Soil के अंदर बहुत नीचे तक जाएगा, और equal distance पर वो seed गिरते जाएगा, और तब आपका वो जो plant का depth होगा that will also be appropriate, and the distance from one seed to the other will also be appropriate. Clear? So this is known as seed drill, or it is done with the help of machine. आप कभी कभी देखे होंगे, watched in the TV also, और कभी आपको मौका लगा होगा गांव की तरफ जाने का, तो आप देखते होंगे फार्मर्स एक पतला रो बनाते हैं, this टाइप एक रो डेवलप करते हैं, and these rows, जिसको हिंदी में क्यारी बोला जाता है, क्यारी बोल सकते हो तुम। तो वो रो क्यों बनाया जाता है? ताकि this portion जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें सीड्स रहे, और यहाँ से इरिगेट किया जा सके। जो स्पेसेस है, दिस स्पेसेस आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, सो दैट ऑल द प्लांट्स गेट मॉइस्चर इन इक्वल अमाउंट में वाटर फ्लो कर सके, एंड दे आर ऑल आर इरिगेटेड प्रॉपर्ली, ऑल द सीड्स आर इरिगेटेड प्रॉपर्ली। सो दिस इज द सेकेंड मेथड of sowing of seed, that is known as seed drill. Clear? Then the third method, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। पहले सीड क्या ड्रिल होता में है? प्लाउइंग और सोइंग एक साथ ही होता है। क्या मैम सीड ड्रिल मेथड में प्लाउइंग और सोइंग एक साथ ही होता है। नो, प्लाविंग अलग मेथड। सीड ड्रिल मेथड में जब वो पूरा रेडी हो जाएगा फील्ड, तब इस सीड ड्रिल मेथड से हम उसको सो करेंगे। प्लाविंग और सीड ड्रिल एक साथ नहीं होता है, वो अलग अलग मेथड, ठीक है। उसका मशीन भी अलग होता है। द मशीन विच इज अटैच टू द ट्रैक्टर, ट्रैक्टर में ही अगर अटैच किया हुआ है तो उसका इक्विपमेंट अलग होगा, प्लाविंग का इक्विपमेंट अलग होगा, और सीड ड्रिल का इक्विपमेंट अलग।
ओके मैम पोटैटो का Then- मैम सीड होता है मैम। मैम कैसे एग्रीकल्चर मैम पोटैटो Pardon? मैम सीड नहीं होता है सीड मैम पोटैटो का। नहीं तो ट्रांसप्लांटेशन होगा ना। पोटैटो का भी सीड होता है, पोटैटो में भी सीड होता है। कैसे होता है ये बताते हैं तुमको। आप लोग जब क्लास 7th में थे तो उसमें ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता, उसमें सीड ही होता है। आपको पहले क्या होता था जब आप लोग वो पढ़ रहे थे, मॉडिफिकेशन क्लास 7th में पढ़े हो ना, तो Yes, ma'am. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो Yes, ma'am. मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में आप लोग पढ़े थे कि आइज या कॉम डेवलप होता है। तो अगर सपोज कर लो दिस इज योर पोटैटो, तो एक ड्रॉप का डॉट की तरह आपको उसके ऊपर दिखेगा, तो दीज आर नोन एज आइज, ये आइज होता है। और जब सोइंग सीजन आता है तो एक पोटैटो से बहुत सारा प्लांट बन सकता है। इसको इस तरह से कट कर लिया जाता है और तब इसको सो कर दिया जाता है, और उसका प्लांट ऊपर दिखेगा पोटैटो का, और उसका जो फल लगता है एक्चुअली इट इज अ मॉडिफिकेशन, और उसका जो फल होगा वो आपको सॉइल के नीचे आएगा। तो एक प्लांट में बहुत सारा पोटैटोज आपको सॉइल के नीचे आता है, ठीक है। तो दैट इज डन बाय विद द हेल्प ऑफ सीड। ये अलग से सीड नहीं होता है। जो पोटैटो हम लोग खाते हैं वही सोइंग सीजन में इस तरह से टर्न हो जाता है, उसका कोई अलग से सीड डेवलप नहीं होता है। और इसी आइज के साथ पोर्शन को जब हम कट करते हैं तो वो अलग से एक प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसप्लांटेशन। ये ट्रांसप्लांटेशन आपको राइस में होता है, पैडी में। कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्मॉल फील्ड्स आर डेवलप, छोटा छोटा फील्ड डेवलप किया जाता है। सपोज कर लो दिस इज अ स्मॉल फील्ड, यहाँ पर एक स्मॉल फील्ड डेवलप किया जाता है, और यहाँ पर जो ग्रेन्स होता है जिसको धान बोलते हैं, पैडी के ग्रेन्स को धान बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। उस ग्रेन्स को यहाँ सो किया जाता है आफ्टर प्रिपेयरिंग दैट सॉइल। सॉइल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स डाला जाता है, प्लाउ किया जाता है प्रॉपरली, देन ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर, वाटर कंटेंट उसमें अच्छे अमाउंट से दिया जाता है, एंड देन इट इज अलाउड टू डेवलप। यहाँ पर उसका प्लांट डेवलप करवाया, that plot is known as nursery। जहाँ छोटा पौधा डेवलप किया जाता है that plot is known as nursery। और जब वो पौधा 15 डेज 20 डेज में एक पर्टिकुलर साइज का ग्रो कर जाता है, तब उसको अलग फील्ड में सो किया जाता है। अलग फील्ड को अच्छे से पहले वाटर किया जाता है, अच्छे से उसमें मैन्योर्स डाला जाता है, प्लाउ किया जाता है, लेबलिंग किया जाता है, एंड विथ अ इक्वल डिस्टेंस इस प्लॉट से 2-3 प्लांट्स एक साथ निकाला जाता है, एंड एट द सेम टाइम इट इज नॉट अलाउड टू स्टोर। अगर स्टोर करोगे तो वो सूख जाएगा। एट द सेम टाइम इस प्लॉट से उखाड़ के उसको नए प्लॉट में विथ इक्वल डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस में उसको सो कर दिया जाता है, एंड दैट फील्ड शुड बी सफिशिएंटली वाटर्ड। उस फील्ड को सफिशिएंट वाटर मिलना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज डन मैन्युअली। ये अभी तक मैन्युअली किया जाता है, because at the same time you cannot pluck up from a field and sow it on the other field. So this method of planting the prepared or grown plant to another field is known as transplantation, as it has been developed। एक plant वो पहले develop हो गया और दूसरी बार उसको दूसरे field में फिर plant किया जा रहा है for proper growth and for proper development and production of the proper crop। तो ये आपको पैडी में, टोमेटो में ये इस तरह का ट्रांसप्लांटेशन होता है। वेजिटेबल्स जनरली आपका टोमेटो हुआ, ब्रिंजल हुआ, ये इस तरह से ट्रांसप्लांटेशन से होता है। और इसका एडवांटेज क्या है कि हम सेलेक्टिवली we can select the proper plant and then it
we can transplant it into new field. New field में हम लोग उसको transplant कर सकते हैं. Or in case of this transplantation, we can select healthy plant. Healthy plant को हम लोग select कर सकते हैं. Paddy seedlings are planted in standing water at appropriate distance, and this ensures uniform availability of sunlight, water, and nutrients to the plant. और इस तरह से ये ensure किया जाता है. This is ensured that the plants are getting proper sunlight, proper you can say water, and proper nutrients. Children, till here any problem? कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, ma'am. कोई क्वेश्चन भी है आपका? No, ma'am. ओके, तो एक बार आप लोग इसको पढ़ लीजिए. फिर सीड ड्रिल में फिर से रिपीट कर दीजिए. सीड ड्रिल, अच्छा, सीड ड्रिल में एक स्पेशल इम्प्लीमेंट होता है. इम्प्लीमेंट मतलब मशीन, मान लो एक तरह का, ये मान लीजिए आप मशीन, और इसका स्ट्रक्चर आप इसी तरह से इमेजिन करिए. इज इट विजिबल? विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो, जैसे आपका फनल होता है ना, कोई भी ऑयल डालने के लिए फनल यूज करते हो ना, तो उसी तरह का फनल इसमें लगा रहता है, अटैच टू द ट्रैक्टर्स, बैक साइड ऑफ द ट्रैक्टर्स, और उसमें सीड भरा हुआ रहता है. जैसे ही वो लोग फील्ड में जाते हैं और वो जो रो बना होता है उसमें वो ड्रॉप होते जाता है खुद से. जब वो उसका होल ओपन हो जाता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर हाइट में जाएगा, डेप्थ में, सॉरी नॉट हाइट, डेप्थ में जाएगा सॉइल के अंदर, और वो नेचुरल है. जब उसमें वो मशीन अटैच्ड है, तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा ट्रैक्टर, फार्मर्स उसके अंदर सीड डालते रहते हैं ऊपर से फनल में, और वो इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डेप्थ पे मूव करते रहेगा. जैसे ही वो मूवमेंट होगा मशीन का, मतलब ट्रैक्टर का, तो वो इक्वल डिस्टेंस में वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होते जाएगा. तो डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हो कि a special implement called seed drill can also be used for sowing. It consists of a funnel opening into a long pipe. इसमें आपको कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे सकते हो, आप केवल एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो मेथड क्या है, व्हाट इज द मेथड यूज्ड इन. क्लियर हो गया? आपको समझ में आया? एनीथिंग मोर यू वांट टू आस्क? मैम ट्रांसप्लांटेशन क्यों करते हैं? ट्रांसप्लांटेशन बताए ना, क्योंकि कोई कोई प्लांट जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा. जब आप एक जगह उसको ड्रॉप कर दोगे तो डायरेक्टली उसका स्ट्रेंथ उतना नहीं है कि वो ग्रो कर पाएगा. तो पहले उसको सीडलिंग को डेवलप करना पड़ता है. इसलिए उसको कोई जो पैडी और ये ब्रिंजल और ये कैबेज, ये सब जो हम आपको बताए, वेजिटेबल्स में ज्यादातर यही है, और पैडी मेन है. तो ये आपको देखोगे कि जब वो डायरेक्टली अगर उसके सीड को सो कर दोगे तो वो उतने स्ट्रेंथ का नहीं होगा, उतना उसमें डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा. इसलिए पहले उसके सीडलिंग को डेवलप किया जाता है, तब उसको प्रॉपर ये में डाला जाता है, फील्ड में डाला जाता है. और ये इंश्योर करते हुए डाला जाता है कि आपको उसको प्रॉपर सनलाइट और वाटर, क्योंकि पैडी में बहुत वाटर की जरूरत है. आप देख रहे हो यहाँ पर जब ये प्रिपरेशन भी हो रहा है, उसमें एक बार एक लुक डालो. जब आप सोइंग भी हो रहा है तो इसमें वाटर दिख रहा है ना फील्ड में आपके, और पीपल दोज हु आर वर्किंग ओवर हियर, यू कैन सी क्लियरली द रोज आर देयर. एक पतला पतला रो धारी बना हुआ है जिसमें कि उसी में उसको डालना है. 2 3 नॉट 1, एक को नहीं डाला जा सकता, एक में उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि उतना प्रोडक्शन कर सके. इसलिए 2 3 seedlings are taken out and then it is again sown. Clear? यस मैम. Okay. चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक बार और रीडिंग कर लेते हैं. कोई पॉइंट अगर छूटेगा तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से रीड करो. Read it from preparation of soil. कोई भी एक बच्चा.
Read, Anurag, you have raised your hand. Anurag, read. Yes, ma'am. We know that plant grow in soil. Plant not only anchor themselves in the soil, but also get water and minerals from it. You have already learned that soil is made up of small particles of different sizes. It contains mineral, water, air, and remain of dead plants and animals. The microorganisms present in the soil decompose the dead organism and release nutrients present in the bodies to the soil. Although the soil is very good medium for the generation and growth of seed, it has to be prepared for growing a crop. Preparation of the soil involves loosening and turning it. This process is known as ploughing or tilling. It is done by using a wooden or iron plough, which is pulled out either by yes, ma'am, pulled either by oxen or by a tractor. One thing Ploughing here, that 1 minute. One thing here, what we have to understand also, that why this ploughing is done, because the unwanted weeds and plants which are there, when they will be turned, they will remain in the soil and decompose there. वहां पर decompose होगा, and that will also develop in a nutrient, a type of nutrient in the soil. So that is also very important. You can say practice which is done in the case of turning and loosening of the soil. प्लाविंग के कारण जो भी अनवांटेड प्लांट था वो उसी में डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोज करने से, क्योंकि वो अपरूटेड हो गया, अब उसका ग्रोथ नहीं होगा, तो ग्रोथ नहीं होगा तो एक तो वो फील्ड फ्री हो जाएगा ये अनवांटेड प्लांट से, और दूसरी बात कि वो अगर वो अनवांटेड है तो डिकम्पोज करेगा, तो कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट सॉइल को ऐड करेगा, बिकॉज इट विल कंटेन सम ऑर्गेनिक मैटर. उसमें भी रूट्स होंगे, लीव्स होंगे, तो दैट विल डिकम्पोज इन द सॉइल एंड एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉइल. यस, अब आगे पढ़िए. अनुराग, रीड. Is there Ploughing has anybody? one advantage. हाँ, It but improves air circulation so that root can aspire easily. Root can penetrate deeper into the soil. This enables them to hold the plant firmly. Ploughing enhances the water retaining capacity of the soil. Ploughing uproots the weeds growing in the field. It also aids in the growth of microbes. A ploughed field has big piece of soil called crumbs. These crumbs are crushed with a wooden plank. The field is then leveled for sowing and irrigation purpose by using a leveler. Next, sowing. Till here, I think any problem with you all? कोई दिक्कत है आप लोग को? No, ma'am. चलिए, sowing पढ़िए. planting of seeds in the soil is known as sowing. This is done after ploughing. That there are many ways of sowing the seed. Seed can be scattered in the field manually. This is called broadcasting. Second, a special implement called seed drill can also be used for sowing. It consists of funnel opening into a long pipe. It is attached at the back of plough. Seed are dropped into the funnel. As the plough moves, the seed get planted in the furrows made by the moving plough. In some crops like paddy, tomato, and chili, seed are sown in small plot called nursery. When seedlings are formed, they are manually planted in the field. This is known as transplantation. It enables the farmer to selectively cultivate only healthy plant. In the case of paddy, seedlings are planted in standing water at appropriate distance. This ensures uniform availability of sunlight, water, and nutrients to the plant. Okay. So till here, children, what all you will learn? आप लोग को learn क्या करना है? अभी आप plowing और tilling definition याद करोगे. Then crumbs का definition याद करोगे. Note कर लीजिए आप लोग. Plowing और tilling, crumbs,
sowing, broadcasting, seed drill. This all we will discuss in the question, but जो book में दिया हुआ है उसको आपको पढ़ना है, बार-बार पढ़ना है. Because once if you will read, you will not be able to understand in your appropriate language as it is given in the book. And don't try to make answers yourself. अभी आप लोग का learning stage है, so learn the technical word which is given in your book. Book में जो आपका technical word उस term को define करने के लिए दिया हुआ है, अभी आप लोग का वो stage नहीं है कि आप खुद से साइंस का आंसर फ्रेम करोगे. जब आप लोग हिंदी से इंग्लिश करने लगते हो उसी में आप लोग मिस्टेक करते हो एग्जाम में. तो ट्राई टू लर्न इट, जो फैक्ट दिया हुआ है बुक में, दैट विल बी मच इजियर फॉर यू.